Welcome to Keto Pharmacology. I'm Dr. Sehrish Safar, and those who are new here, I'm an Associate Professor of Pharmacology in CMS Lahore Medical College. Today we are going to discuss the pathophysiology of arrhythmias. Do not skip this video if you want to know what is abnormal automaticity and abnormal currents. Before we hop to the arrhythmias, we have to see what normal sinus rhythm is. The normal rhythm क्या है? An impulse is generated by the sinoatrial node, which is the natural pacemaker in the heart. वो impulse कहाँ से transfer होती है? Passing through the atrial muscle, then to the AV node, वहाँ से Purkinje system, and then finally to the ventricular muscle, where it is extinguished after activating all the myocytes. फिर एक नई impulse generate होगी which is going to follow the same pattern, and with every impulse हमारा एक cardiac cycle जो है वो complete होगा. When we look at the normal action potential, we see that there are 4 different phases in an action potential that occurs in the ventricle. सबसे पहले phase 0 होता है. Phase 0 is the upstroke of the action potential because of the influx of sodium ions. An inward movement of the sodium ions, जिसकी वजह से depolarization होती है, and there is an upward movement of the action potential. At certain point, एक certain positive voltage पे पहुँच के these sodium channels become inactivated and they close. तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल नीचे आना शुरू हो जाती है. एक ट्रांजिएंट फेज आता है जिसे हम कहते हैं फेज 1, विच इज़ अ ट्रांजिएंट रीपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स. बिकॉज पोटेशियम चैनल्स फास्ट चैनल्स हैं, दे ओपन अप क्विकली. कैल्शियम चैनल्स टेक अ सर्टन टाइम टू ओपन. तो पोटेशियम चैनल्स ओपन फर्स्ट, रिजल्टिंग इन इफ्लक्स कॉजिंग स्मॉल रीपोलराइजेशन. लेकिन क्या होता है कि उतनी देर में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं एंड द फेज 2 स्टार्ट्स. फेज 2 इज कॉल्ड द प्लेटू फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल. उसमें क्या हो रहा होता है, देर इज कैल्शियम इनफ्लक्स. नाउ कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है. बोथ ऑफ दीज आर काउंटरिंग ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट अ प्लेटू इज फॉर्म्ड एंड एक्शन पोटेंशियल स्टेज एट द सेम depolarization level. Then the calcium channels close. The potassium channels are open and there are other potassium channels, they also open, resulting in rapid repolarization because potassium efflux होता है, it moves out of the cell, resulting repolarization of the membrane potential. उसके बाद क्या होता है कि phase 4 आ जाता है. When the membrane potential it reverts back to its resting membrane potential, जब ये -96 पर वापस आ जाती है तो क्या होता है कि phase 4 स्टार्ट हो जाता है. Now what is the purpose of phase 4? देखिए सारे आयनिक बैलेंसेस आपके जो है वो अपसेट हो चुके हुए हैं. सोडियम विच नेचुरली इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, वो इनफ्लक्स के बाद सेल में आ चुकी हुई है. पोटाशियम विच इज़ एन इंट्रा सेलुलर आयन, वो इफ्लक्स की वजह से इट हैज़ मूव्ड आउट ऑफ द सेल. फेज़ 4 का पर्पज़ ये होता है टू रीस्टोर ऑल दीज आयोनिक बैलेंसेस, ताकि जब नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो तो ये सब अपनी प्लेस पे रेडी हों टू एक्ट अगेन. सो ये कैसे होता है फेज़ 4 में? बाय द सोडियम पोटाशियम पम्प which pumps sodium out of the cell and potassium into the cell. The normal action potential at SA node is slightly different. इसमें हमारे पास एक phase 0 होता है, but ये phase 0 sodium influx की वजह से नहीं होता. The main ion in phase 0 in the pacemaker potential जो SA nodal potential है, that is the calcium ion. तो SA node पे AV node पे हमारे पास जो है ना वो calcium का बड़ा strong role होता है. So calcium is responsible for phase 0 influx, which then when it reaches a certain membrane potential तो वो action potential बन जाती है, impulse generate हो जाती है, and then it comes directly to phase 3, जिसमें क्या होता है कि potassium channels open हो जाते हैं and they cause repolarization. And then the phase 4 is very different from the phase 4 of the ventricles. Phase 4 of the ventricle is flat, बिल्कुल straight line होती है. पर यहाँ पे क्या होता है कि द फेज़ 4 इज़ स्लांटेड. क्यों? क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे कुछ आयंस इन्वॉल्व हैं. सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम का स्लो इन्फ्लक्स हो रहा है, एंड देन देर आर रेक्टिफाइंग करंट्स जिसकी वजह से स्लो लीकेज हो रही होती है, विच इज़ कॉजिंग स्लो डीपोलराइजेशन until the membrane reaches a specific level which is the threshold and an action potential spike is generated. This is the reason कि जो हमारे पेस मेकर्स हैं उनके अंदर ऑटोमेटिसिटी है. There are certain leak channels जिनकी वजह से continuous slow depolarization होती है membrane की, which brings the membrane to the point of threshold, generating the action potential. Now that we know what is the normal sinus rhythm and what are the normal ionic potentials, we can now talk about arrhythmia. Arrhythmia is any irregularity in the cardiac rhythm, anything that is not
normal sinus rhythm is categorized as arrhythmia. Arrhythmia bradyarrhythmia भी हो सकता है, which means that there is a failure of impulse generation, जिसकी वजह से slow heart rate हो जाएगा, less than normal हो जाएगा. The normal heart rate is 60 to 100 beats per minute. Less than 60 would count as bradyarrhythmia. It could also be heart block. अगर bradyarrhythmia severe हो जाए तो impulse propagate ही नहीं होगी, which can result in heart block. Cardiac arrest हो सकता है patient में. Then it can be tachyarrhythmia also, which means more than 100 beats per minute. Fast heart rate हो जाए. The important point here is that bradyarrhythmias and heart block are generally treated surgically, क्योंकि उसमें pacemakers का role important हो जाता है. बहुत drugs का जो role है ना limited है in bradyarrhythmias. Majority of the drugs that we will be talking about are they treat the tachyarrhythmias, क्योंकि फास्टर हार्ट रेट को हम स्लो डाउन कर रहे होते हैं. अगर हम स्लो को फास्ट करें तो उसमें हमारी बॉडी के हीमोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. जैसे हमने हार्ट फेलियर में भी ये बात की थी कि हम कार्डियक वर्क, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो हम कार्डियक बर्डन जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, एंड मे बी द पेशेंट इज़ अनएबल टू बेयर दैट. सो ब्रेडीरिथमियाज में मेनली सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. अब एरिथमिया होता क्यों है, एरिथमिया की कॉजेज़ क्या हैं? देयर आर टू मेजर कॉजेज़. या तो इम्पल्स जनरेशन में प्रॉब्लम है या इम्पल्स की कंडक्शन में प्रॉब्लम है. जनरेशन का मतलब ये है कि वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, और उस जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसमें कोई प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है. और प्रोपगेशन में या कंडक्शन में क्या है कि वो जिस पाथ से इम्पल्स ट्रैवल करती है उस रूट में कोई प्रॉब्लम है. टॉकिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ इम्पल्स जनरेशन, देयर कैन बी एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी और देयर कैन बी ट्रिगर्ड एक्टिविटी विच इज़ क्लासिफाइड एज अर्ली डीपोलराइजेशंस और डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशंस. और देयर कैन बी डिसऑर्डर्स ऑफ इम्पल्स conduction, which are mainly the re-entry phenomena. Let's see what are these. When we say abnormal automaticity, तो automaticity काम है pacemaker cells का. Pacemakers हमारे normally क्या हैं? SA node है. SA node is the pacemaker in the heart. अब होता क्या है कि अगर कोई accelerated phase 4 slope बन जाए, हमने डिस्कस किया था कि pacemaker potential में phase 4 is the main reason जिसकी वजह से automaticity आती है. Impulse खुद ब खुद जनरेट होती है बिकॉज द मेम्ब्रेन कीप्स रीचिंग द थ्रेशोल्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ द लीक करंट्स. लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल इंजरी है जिसकी वजह से फेज़ 4 एक्सेलरेट होता जा रहा है, ठीक है, अब ये कैसे हो सकती है? इस्कीमिया हो सकता है, कोई मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है. नॉर्मली हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन क्या करती है, इस पेसमेकर रेट को डिक्रीज़ कर रही होती है बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग द फेज़ 4 एंड इट इज़ कॉजिंग हाइपरपोलराइजेशन, जिसकी वजह से वेगल करंट्स जो हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं. लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी हो, स्पेशली अगर कोई इस्कीमिया हो, तो वेंट्रिकल वॉल्स में कोई ऐसा पेसमेकर भी बन सकता है, कोई एबनॉर्मल पेसमेकर बन सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे नोड में प्रॉब्लम आए. हो सकता है कि कोई इस्कीमिक टिश्यू, कोई इंजर्ड टिश्यू में एबनॉर्मल रीपोलराइजेशन, एबनॉर्मल फेज़ 4 पे जो है वो डीपोलराइजेशंस होना शुरू हो जाएं एंड इट एक्ट्स एज एन एबनॉर्मल पेसमेकर, जहाँ से नई इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं विच आर एबनॉर्मल बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल साइनस रिदम. अब ट्रिगर्ड एक्टिविटी क्या है? एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल या तो इंटरप्ट हो जाए और या फिर इट इज़ फॉलोड बाय एन एबनॉर्मल रिदम. एक नॉर्मल हो रहा है, या तो उस नॉर्मल के बीच में उसका वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा नॉर्मल रिदम और एक एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और या फिर एक नॉर्मल होगा फॉलोड बाय एन एबनॉर्मल, देन एबनॉर्मल, इस तरह से हो सकता है. दिस इंक्लूड्स अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशंस, डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशंस एंड टॉर्से डी पॉइंटीज. टॉर्से डी पॉइंटीज क्या है? देयर इज़ मार्क्ड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. क्यों? क्योंकि उसमें जो वेंट्रिकुलर आपका है ना लॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, एक एबरेंट रिदम क्रिएट हो जाता है. वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है इसमें, और उसका पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, एक बहुत एबरेंट रिदम होता है विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट. नाउ व्हाट आर अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशंस? अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशंस ऐसी इंटरप्शंस हैं विच आर क्रिएटेड इन फेज़ 3 ऑफ द रिपोलराइजेशन. जब हमने नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया, सो वी सेड कि देयर इज़ अ phase 0 in which there is an upstroke of action potential, followed by phase 1 in which there is transient repolarization, then there is phase 2 which is a plateau phase, and then there is phase 3 in which repolarization occurs. इस phase 3 में अगर कोई disturbance आ जाए, as we can see in the diagram,
तो वहाँ से एक एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है, प्लेटो प्रोलॉन्ग हो जाता है और वहाँ से एक एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो जाती है विच इज़ द अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? ब्रेडिएरिथमियाज, हाइपोकलीमिया, पोटेशियम कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो दैट कैन बी वन रीज़न फॉर डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन. There are certain drugs that prolong the QT interval like quinidine, sotalol, procainamide. They can also cause the early after depolarizations. On the other hand, delayed after depolarizations occur during phase 4. Phase 4 में ये interruptions होती हैं mainly because of the calcium overload which creates oscillating potentials which cause the membrane potential to reach the threshold and generate an abnormal impulse. ये कैल्शियम ओवरलोड क्यों होता है? वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल, बिकॉज ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, बहुत कॉमन कॉज है. द अदर कॉजेज इंक्लूड मायोकार्डियल इस्कीमिया, एड्रेनर्जिक स्ट्रेस, एनी फैक्टर विच कॉजेज increased force of contraction which results in building up of calcium inside the cell which can act as the trigger calcium that causes delayed after depolarization. Lastly, अगर हम impulse conduction की बात करें तो that is mainly through the re-entry phenomena. Re-entry is one of the most common causes of arrhythmia, especially जहाँ पे myocardial injury हुई हो, ischemia हुआ हो. Normally हमारी impulses एक synchronized manner में they are unidirectional. ठीक है, impulse generate होती है ऐसे नोड से, unidirectional travel करती है until it reaches the ventricles और वहाँ पे ये vanish हो जाती है, कोई वापस दोबारा circulate नहीं करती. So यहाँ पे क्या होता है कि impulse in the re-entry phenomena, it re-enters and re-excites an area of the heart more than once. तो कोई नई इम्पल्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती है, एक ही इम्पल्स जो है वो सर्किट में घूमती जा रही होती है, बार बार एक एरिया को एक्साइट करती जा रही होती है और वहाँ पे अब नॉर्मल रिदम जनरेट हो रहा होता है. वी कैन सी दिस इन द पिक्चर हेयर. ऐसा कब होता है कि जिस वक्त अगर कोई ब्लॉक आया हुआ है, कोई टिश्यू इंजर्ड है, वहाँ से नॉर्मल इम्पल्स जो फॉरवर्ड उसने प्रोपोगेट होना था वो नहीं हुई, तो वहाँ पे रिट्रोग्रेड इम्पल्सेस ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती हैं. दिस इज़ हाउ अ वेंट्रिकुलर एरिथमिया लुक्स लाइक. अगर आप इसको कोरिलेट करें विद द ECG, आप देखें पहली इम्पल्स नॉर्मल थी. वाई? बिकॉज एट्रिया में इम्पल्स जनरेट हुई, वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट हुई, फिर दोबारा एट्रिया में जनरेट हुई, वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट हुई. बट इफ़ यू फोकस, जो थर्ड इम्पल्स है दैट इज़ नॉट जनरेटेड इन द एट्रिया, वो वेंट्रिकल्स में ही जनरेट हुई. दैट वाज एन एबनॉर्मल इम्पल्स. इफ़ यू लुक एट द एट्रियल एरिथमियाज, वी कैन सी के एबनॉर्मल इम्पल्सेस कहाँ जनरेट हो सकती हैं कि ऐसे नोड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे नोड में से नहीं इम्पल्स जनरेट हो रही, एट्रियल टिश्यू में से जनरेट हो रही है और कंडक्ट होके वेंट्रिकल्स में जा रही है. दैट इज़ अगेन एबनॉर्मल बिकॉज द नॉर्मल नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज़ SA node. It is not the atrial muscle, it is not the AV node. Anything generating from these points is abnormal. Lastly, एरिथमिया की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? क्लिनिकली कैसे मैनिफेस्ट करेगा? इट कैन प्रेजेंट एज एक्स्ट्रा सिस्टली विच इज़ एन एक्स्ट्रा हार्ट बीट, प्रीमेच्योर बीट क्रिएट होगी ड्यू टू एबनॉर्मल रिदम. इट कैन बी पेरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जिसमें सडन एट्रियल टेकीकार्डिया होता है. सुप्रा वेंट्रिकुलर का मतलब है कि इट इज़ ओरिजिनेटिंग एट सम पॉइंट अबव द वेंट्रिकल्स. नॉर्मली जो कट ऑफ पॉइंट है बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिदम, वो AV नोड है. सो AV नोड से ऊपर और इंक्लूडिंग द AV नोड जो एरिथमियाज होते हैं उनको हम सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियाज कहते हैं. सो ये एट्रियल टेकीकार्डियाज होते हैं, इसमें सडन जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, 150 to 200 बीट्स पर मिनट पे जा सकता है. दे कैन बी एट्रियल फ्लटर, कि एट्रिया जो है उसमें इतना ज़्यादा एबनॉर्मल करंट जनरेट हो कि एट्रिया फ्लटर करना शुरू हो जाए, जिसका हार्ट रेट जो है वो 200 to 350 बीट्स पर मिनट पे जा सकता है. एंड दिस एट्रियल फ्लटर कैन टर्न इनटू एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट रेट रीचेज अप टू 350 to 550 बीट्स पर मिनट. और उसमें से हर बीट वेंट्रिकल में ट्रांसमिट नहीं हो रही होती, बट सर्टन बीट्स डू गेट ट्रांसमिटेड टू द वेंट्रिकल्स लीडिंग टू अ वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 100 to 160 बीट्स पर मिनट. वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में अगर 4 और मोर कंसेक्टिव एक्स्ट्रा सिस्टलीज आएँ तो वी से कि ये वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है पेशेंट में. टेकीकार्डिया नॉर्मल साइनस टेकीकार्डिया भी हो सकता है, दैट मीन्स कि नॉर्मल इम्पल्सेस हैं पर रेट बढ़ गया हुआ है. बट वेंट्रिकुलर टेकीकार्डियाज जो पैथोलॉजिकल हैं, दे टिपिकली प्रेजेंट विद एक्स्ट्रा सिस्टलीज विच आर प्रीमेच्योर बीट्स. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज रैपिडली इरेग्युलर कंट्रैक्शंस, रैपिडली इरेग्युलर कंडक्टेड रिदम, जो इतना ज़्यादा टेकीकार्डिया होता है कि विच इज़ नियरली फेटल. एंड दिस अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग MI, पोस्ट MI
और इलेक्ट्रिक्यूशन, इस तरह के केसेस में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। दे कैन बी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, ये ब्रेडी एरिथमिया की टाइप है। वेगल इन्फ्लुएंस हो, इस्कीमिया हो, द ब्लॉक कैन बी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, जिसकी वजह से देर इज़ स्लोड कंडक्शन एंड देर इज़ आइदर अ ड्रॉप बीट और देर इज़ नो बीट एट ऑल। तो अगर एक नॉर्मल रिदम आएगा, बीच में एक बीट ड्रॉप हो जाए, फिर एक नॉर्मल रिदम आए, फिर एक बीट ड्रॉप हो जाए, सो हार्ट रेट बहुत स्लोड डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ ब्रेडी एरिथमिया कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाए। This is all about the pathophysiology of arrhythmias. If you liked it, please hit the like button and subscribe if you haven't done so yet.